Hello students, in this video we will be discussing about some of the topics of solutions like colligative properties and its types and also the abnormal colligative properties. Okay, so let us begin. First of all, what are colligative properties? Okay, so colligative properties has a simple definition that the properties which depend upon the amount of solute or the amount of solute present in the solution or the amount of matter present in the solution, and they are totally independent of the nature of the solute. Just like we're going to discuss and we'll go a little deeply, but previous to that let us go to the definition. The properties, or you can say the properties of liquid. Why we are discussing as in the form of liquid? Because we are discussing about liquid solutions. So the properties of a liquid, indirectly it is mentioning about solution that may be altered by the presence of a solute, है ना. सो सॉल्यूट की वजह से जो अल्टर हो जाता है या सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी अल्टर करेगा. दोज काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, एंड दे डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, only on the amount of solute. Okay, and does not depend on the identity of the solute. Just like you may put 1 kg salt or 1 kg sugar, the colligative property will be defined for 1 kg, not either for sugar not for salt. It can be any substance, but it should be of similar amount, same amount. Understanding? So this kind of properties which depend on amount of solute, not on the nature of solute, are called as colligative properties. Then who are non-colligative properties? Non-colligative properties are those properties which depend on the identity of the dissolved solute and the solvent. ये आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई कौन आके सॉल्वेंट में मिल रहा है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है. दिस ऑल द थिंग्स इट विल टेक केयर. But colligative properties will not take care about the nature but only depends upon the amount. अगर ज़्यादा अमाउंट डालेंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कम अमाउंट डालेंगे तो कम फर्क पड़ेगा. Now let us go and see what are the types of, or what are the types of its colligative properties which actually depend on amount of solute. Okay, yes, there are 4 colligative properties of solutions. What are they? Vapor pressure lowering, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, उल्टा है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाना. सो हम लोग एक एक चीज को अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स नाइसली. सेकेंड वन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उल्टा अगेन. Next, freezing point depression, or sometimes it also called as depression in freezing point. So from the name itself you will be able to understand कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना. जैसे कि यहाँ पे देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है. लोअरिंग मतलब कम होना. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है ना, कम हो रहा है. देन ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू ऑस्मोसिस, which you all might have studied till 10th class in 10th class science. Okay, so these are the 4 colligative properties of solutions. Okay, as you all know, the property is determined by the number of solute particles in solution rather than the type of particles. Type of particles के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर coming the first one, relative lowering of vapor pressure. So what is this relative lowering of vapor pressure? First of all, let us understand what is lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर जो है आपका कम क्यों हो रहा है. देखिए, वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, वही था ना वेपर प्रेशर. यस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, हमने देखा था एक कंटेनर देखा था, है ना. कंटेनर में क्लोज होना चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो वेपर भाग जाएगा बाहर. एंड यू नो दिस इज योर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर सम वेपर मॉलिक्यूल्स सपोज. एंड वेपर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कुछ प्रेशर डालेंगे. इक्विलिब्रियम का टाइम पे प्रेशर जब डालेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वर रिफर्ड एज वेपर प्रेशर, है ना, वीपी. सो बात ये कि कभी कभी क्या करते हैं हम, जब इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं. हमने ये चीज डिस्कस किया था जब हमने रॉल्स लॉ को पढ़ा था, है ना.
whenever you put a non volatile solute, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करेगा क्या, जो आपका जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है मतलब ये आपका क्या है, ऑब्वियसली वोलाटाइल सॉल्वेंट है। इनिशियल लिखा था आपके पास वोलाटाइल सॉल्वेंट था। वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जल्दी से जल्दी गैस बन जाएंगे। तो वोलाटाइल सॉल्वेंट के ऊपर आप अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दोगे तो क्या होगा गाइस, आप अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दोगे तो क्या होगा गाइस, देखिए आपका लिक्विड था उसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो क्या होगा, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे वेपर बनने वो नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये सबको जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं, इमेजिन दिस एज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट को रोक देगा, जिसकी वजह से वेपर्स नहीं बन पाएंगे। अगर वेपर्स नहीं बन पाएंगे ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बिकॉज आपने कुछ डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इनिशियल से कम हो गया, इनिशियल से कम हो गया। दिस इज रिफर्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट्स ऑल। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को बोलते हैं। अगर मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर हम लोग कैसे लिखते हैं गाइस, P1 नॉट बोलते हैं, है ना। एंड मान लीजिए नया वेपर प्रेशर का नया नया सॉल्यूशन जो बना है आफ्टर पुटिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। एंड ये जो नया सॉल्यूशन बना है आफ्टर पुटिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका प्रेशर कितना होगा, मान लीजिए P1, तो कम होगा कि नहीं, आपको पता है ना कम होगा। तो कितना कम होगा, P1 नॉट माइनस P1, इतना कम हो गया। दिस इज योर व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P लिख सकता हूँ ना। डेल्टा P मीन्स व्हाट, चेंज इन प्रेशर, है ना, लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव मतलब किसी के ना किसी साथ वो मैच कर रहा है, आई मीन कंपेयर कर रहा है। किसके साथ कंपेयर कर रहा होगा, चेंज इन प्रेशर डेल्टा P बाय ओरिजिनल प्रेशर P1 नॉट, चेंज इन प्रेशर डेल्टा P बाय ओरिजिनल प्रेशर P1 नॉट, हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल वेपर प्रेशर P1 नॉट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था P1 नॉट अगर ले हैं तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आगे चल के हम लोग और भी ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट एंड सॉल्यूशन P1 रिप्रेजेंट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको पता है जस्ट P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट क्या था, ओरिजिनल का था, P1 क्या था, सॉल्यूशन बनने के बाद। डिवाइडिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट के साथ डिवाइड कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा। एंड बोल रहे हैं कि दिस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही होगा कि नहीं। हाँ देखिए, आप जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। आप जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, वो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए आप पानी है, पानी में आप नॉर्मल पानी जितना जल्दी वेपर बन सकता है उसमें अगर हम नमक डाल दिए तो उतना जल्दी वेपर नहीं बनेगा वो, है ना, बिकॉज नमक का मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पानी का पानी का मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो जितना ज्यादा डाल रहे हैं उतना ज्यादा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। जितना ज्यादा आप नमक डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे, उतना कम हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, क्योंकि उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, है ना। इस केस में देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है ना, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कुछ प्लस मतलब क्या है, आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया तो क्या होगा आपका, यहाँ पे सॉल्यूट को डाल देंगे तो क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, है ना, लोअर वेपर प्रेशर, है ना। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ मैच कर रहा था पहले, अभी मैच नहीं करेगा, बिकॉज आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। वाई, बिकॉज आपने किसको डाल दिया, सॉल्यूट को डाल दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसको हम लोग, है ना, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 करके लिखना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पे आपको पता है अगेन कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा P लिख सकता हूँ ना, डेल्टा P बाय P1 नॉट, है ना। आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन x2, है ना। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो मुझे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, है ना। सो कांस्टेंट ला सकता हूँ, एंड कांस्टेंट के जगह में यू नो अगेन
दैट ये ऑलरेडी डिफरेंस है, ये ऑलरेडी एक डिफरेंस है। तो बिकॉज ये आप डिफरेंस ले रहे हो, बाय अगेन प्रेशर ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट लाओगे तो अगेन देखिए, एक्चुअली दिस इज, यू कैन से दिस इज यूनिटलेस। आप देखिए अच्छा से, दिस इज यूनिटलेस एंड x2 मोल फ्रैक्शन, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस, है ना। बिकॉज बोथ आर यूनिटलेस, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं। कांस्टेंट को जब इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा p बाय p1 नॉट इज इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। सो कांस्टेंट को इग्नोर करके डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली सही होगा। ओके, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। एंड x2 मीन्स व्हाट, x2 मीन्स, 2 मीन्स व्हाट, 2 इज योर सॉल्यूट, 1 कौन है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह में, समझ गए। सो दिस इज द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, बट फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। यस, तो कभी कभी देखिए, एक्चुअली कांस्टेंट का बात हम जो कर रहे हैं ना, एक्चुअली कांस्टेंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सो डेल्टा p बाई p1 नॉट इज इक्वल टू, हर जगह एक कांस्टेंट को यूज करते हैं, एक फैक्टर है, कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते, इनटू x2, ये आई का नाम है वैन हॉफ फैक्टर, आई का नाम है वैन हॉफ फैक्टर। तो वैन हॉफ फैक्टर का यूज क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए, अगर आई लिखा हो तो अच्छा है, अगर आई नहीं लिखा गया है तो समझ जाइए कि आई इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। अगर लिखा है तो अच्छा है, नहीं लिखा है तो समझ जाइए कि आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो दिस इज योर अल्टीमेट फॉर्मूला। अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी वाई पी वन नॉट इज इक्वल टू आई इंटू x2। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट था। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट खाली बॉइलिंग पॉइंट था नहीं, हमारे पास था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है, कैसा है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर टू दैट लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप जानते होंगे, बोलेंगे सर जब लिक्विड वेपर बनता है एंड गैस बनता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सो ये हम लोग बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द temperature at which the vapor pressure of the liquid equals the atmospheric pressure, the temperature at which vapor pressure of the liquid, देखिए लिक्विड का वेपर प्रेशर बनेगा ना, आप उसको हीट करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं, हीट करेंगे तो बनेगा। हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर जैसे कन्वर्ट होंगे, वो वेपर आपका कुछ प्रेशर डालेंगे, है ना। तो ये वेपर प्रेशर जब आपका किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अगर मैच करेगा, वेपर प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करेगा, दैट इज रिफर्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड मतलब कौन है गाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आपका जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इक्वल होंगे, वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, बॉइलिंग पॉइंट। The normal boiling point is the temperature at which the vapor pressure becomes equal to standard pressure 101 kilopascal। 101 kilopascal मतलब कुछ नहीं है, आपका 1 atm है स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, boiling point elevation। The addition of a solute to a liquid solvent will usually raise the boiling point of the solvent। Adding salt to boiled water when cooking, आप जब पानी में नमक डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बोल रहा है ना। सो आप अगर कुकिंग कर रहे होंगे आपको आइडिया होगा, है ना, ये जैसे कुकिंग कर रहा है सो आपको आइडिया होगा कि नमक डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, सोचने का बात है, क्यों होता है ऐसे, नमक डालने पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया। बहुत सिंपल लॉजिक है गाइस। देखिए हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि आपके पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर में आपके पास खाली पानी था, ठीक है, ये पानी था, जितना पानी है मान लीजिए, इसको बंद कर दिए हैं। आप इसको जब नॉर्मली हीट करेंगे तो बाहर का मान लीजिए एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm है जनरली जो होता है, एंड जब इसको हीट करें तो क्या होगा, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, जल्दी वेपर बन जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, कुछ ही देर में आपका अंदर का वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 atm। तो ये कितना टेम्परेचर में होता है जनरली, T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये पानी था, तो ये पानी था, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm एंड वेपर प्रेशर 1 atm दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट,
है ना, ओरिजिनली जब आपने प्योर पानी को लिया था। बट इसमें आप जब नमक को डाल देंगे तो नमक क्या करेगा, आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वेपर प्रेशर जो 1 atm बनना चाहिए था, बनेगा जल्दी? बनेगा? नहीं बनेगा। 1 atm की जगह जब नमक डाल दिए तो मान लो ये हो जाएगा आपका 0.75 atm। कितना हो गया? 0.75 atm। कितना हो गया? 0.75 atm। होना कितना चाहिए था? 1 atm। 0.75 क्यों हो गया? क्योंकि आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाल दिया, जो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वेपर बनने में। तो अभी 1 atm के साथ मैच करवाने के लिए, 0.75 को 1 तक पहुंचाने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना। नीचे से हीट करेंगे, नीचे से हीट करेंगे तो जो और बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लोग भी जाएंगे बाहर। हीट करने पर फिर से क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हीट करने पर क्या होगा? आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो गाइस? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर इसलिए बढ़ा रहे हो जैसे कि आपका वीपी जो है एपी के साथ मैच करे, है ना। बीपी जो है एपी के साथ मैच करे, इसलिए आप टेम्परेचर बढ़ाया। तो 0.75 जो हो गया था नमक के वजह से, फिर वापस में कहां तक पहुंच जाएगा? 1 तक पहुंच जाएगा। बट आपको कुछ एनर्जी खर्चा हुआ ना, आपने हीट किया ना, आपने हीट करने के वजह से, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है उसका, है ना, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी टीबी मतलब क्या है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी को कैसे लिख सकते हैं गाइस? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बढ़ गया ना, टीबी माइनस टी नॉट बी। क्या लिख सकते हैं? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी मतलब क्या है? फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। टी नॉट बी मतलब क्या है? इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। टीबी क्या है? सॉल्यूट डालने के बाद जो हो जाता है ना, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। सो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट देने पर आपको चेंज मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आपको पता है कि चेंज कैसे बनेगा गाइस? कितना ज्यादा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोलालिटी। मोलालिटी क्या बोलता है? मोलालिटी मींस व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉलिड इन केजी। तो यहाँ पे पता है कि डेल्टा टीबी इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। एम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे देखिए डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। होगा ना, जितना ज्यादा आप नमक डालेंगे, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे, उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यस। सो ये जो है, ये इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जा रहा है, मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का दूसरा नाम भी है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। सो कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ये इसको डिपेंड करेगा ओनली बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पानी के लिए इतना वैल्यू है 0.51 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वैसे m है, एंड आपको बताया था आई एक फैक्टर जैसे यूज होता है, वेंटो फैक्टर। सो ये जो आई को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, बट यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? आई इंटू के बी इंटू एम। ये आपका कॉन्स्टेंट है, फैक्टर है। तो फैक्टर कभी कभी दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, लेकिन हमेशा रहना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं दिया है तो आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, अगर दिया है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। एम क्या है? मोलालिटी। के बी क्या है? मोलल, हाँ, और एक नाम भी है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। टोटल 3 नाम है इसका, ठीक है। एंड कमिंग टू द ग्राफ, ग्राफ में क्या हो रहा है? ये आपने सॉल्वेंट रखा था, ये ऑरेंज लाइन क्या है? सॉल्वेंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था, ये कितना? इतना था, 1 atm, है ना। तो इसमें क्या हुआ? आपने जब सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? वेपर प्रेशर जितना था इस लेवल पे, है ना। तो देखिए क्या हो गया? वेपर प्रेशर आगे चल के वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना। तो वेपर प्रेशर जो नीचे आ गया, ये लेवल जो नीचे पहुंच गया, फिर वापस यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा। देखिए अब ये कंपैरिजन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पे था, और ये क्या है? टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब क्या है? इनिशियल
बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट में जब सॉलिड को नहीं ऐड किए थे, सॉलिड को ऐड करने के बाद यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टीवी। टेम्परेचर डिफरेंस इतना आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो सॉल्यूशन को यहाँ तक पहुंचने के लिए, ब्लू लाइन को, है ना, ये ग्रीन तक पहुंचने के लिए इतना टेम्परेचर जरूरत पड़ रहा है ना। ब्लू लाइन को ऑरेंज का लेवल तक पहुंचने के लिए इतना टेम्परेचर जरूरत पड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए। नमक डालने पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप नमक डालेंगे उतना ज़्यादा ही आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए दो हो गया, एक हो गया आपका पहले वाला हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, दूसरा हो गया आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आ गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। बिफोर दैट लेट अस डिफाइन व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase, है ना। तो किसी का भी लिक्विड फेस में जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर के साथ अगर मैच किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉलिड का एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों मैच करना चाहिए। तो पहले ये बताइए, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है मानते हैं, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड वेपर बन सकता है, सॉलिड अगर वेपर बनेगा तब जाके वेपर प्रेशर बनेगा ना। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन बेसिकली, है ना। वाइवास वगैरह में लैब का पूछा जाता है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है लेकिन एक्सट्रीमली कम होता है। सॉलिड इतना जल्दी वेपर नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि सॉलिड का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस आर वेरी वेरी हाई, जिसके वजह से वो जल्दी गैस नहीं बन पाएगा। बाबा वो लोग तो खुश है ना, सब स्टेबल हैं, दे आर स्ट्रांगली बाइंडेड, यू नो, सो दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। बट इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर तो मेंशन कर रहे हैं लेकिन वेपर प्रेशर इज वेरी 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 लेस। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि जब आपका लिक्विड फेज आपने जो लिया था उसका जो वेपर बनने का टेंडेंसी है ना, वो पूरा जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तब जाके वो लिक्विड क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा ना। समझ गए ना। तो सॉलिड का तो वेपर प्रेशर जीरो होता है ऑलमोस्ट, तो वैसे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर पहले से होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर कमा के क्या करेंगे, हम लोग पहुंचा देंगे, कहाँ तक पहुंचा देंगे उसको, यहाँ तक पहुंचा देंगे जैसे कि उसका वेपर प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। वेपर प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो फॉर सॉलिड्स। समझ गए, दिस इज द पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड का एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों मैच करेंगे। समझ गए, ठीक है। और जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वो ऐसा एक टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड का एंड वेपर का, आई मीन एटमॉस्फेयर का क्या हो रहा था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मैच कर रहा था, वेपर प्रेशर मैच कर रहा था, है ना, एटमॉस्फेयर का और लिक्विड का जो लिए थे आपने। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड का आपका मैच करवाना है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग करते हैं, समझते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे ऐसे ही क्या हो गया, कम होना चाहिए। तो कम क्यों होगा, कैसे होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तो हम भी देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, इट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बिकम्स इक्वल टू दैट सॉलिड सॉल्वेंट एंड लोअर टेम्परेचर 10। हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि रॉल्स लॉ के हिसाब से, रॉल्स लॉ में हम लोग पता था कि डाले थे, हमने डाला था, क्या डाला था, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाला था। अरे भाई, सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉलिड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को क्यों डाला था, टेस्ट करने के लिए कि अभी नया वेपर प्रेशर कितना आ रहा है ना। तो आपको पता है कि आप जब क्या कर रहे हैं, पानी में आप अगर कुछ नमक, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर डाल देंगे तो क्या होगा उसका उसका आपको पता है कि बीच बीच में नॉन वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, किसके बीच में, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो फ्रीजिंग पॉइंट खाली सॉल्वेंट होने पर जितना जल्दी हो जाता मतलब देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रिज में रखते हैं ना, अभी तो समर ऐसे चल रहा है ना, फ्रिज में जब रखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बनता है ना, पूरा सॉलिड बन जाता है।
तो सॉलिड का एंड वो लिक्विड का वेपर प्रेशर आपका जीरो है, इसलिए हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ गए ना। तो बात अगर उसमें आप अगर ग्लूकोज डाल दिए, आप बोलेंगे सर खाली पानी क्या पाएंगे, ग्लूकोज पीते हैं, है ना, ग्लूकॉन डी, आपका लेमन फ्लेवर, है ना, ऑरेंज फ्लेवर, एक एक दिन अलग अलग ना, एंड नॉर्मल, जो नॉर्मल वाला है ना, जो पहले जैसे था, ठीक है। तो अलग अलग फ्लेवर पीते हैं, चलो सर ग्लूकोज थोड़ा डाल देते हैं। तो ग्लूकोज हम लोग जनरली क्या करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, है ना, पानी को ठंडा करते हैं एंड उसके बाद ब्रिंग इट आउट एंड मेक ए ग्लूकोज सोल्यूशन। बट कुछ लोग बोलते हैं सर पहले से हम लोग ग्लूकोज डाल के रख देंगे अंदर, फ्रिज के अंदर, पहले से ही ग्लूकोज डाल के फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो क्या होगा गाइस, देखिए पहले जब नॉर्मल पानी था तो पानी, आपको पता है जब सॉल्वेंट को सॉलिड बनना है ना, सॉल्वेंट को फिर आसपास में आके फिर वो सॉलिड जैसे बनना है, तो क्या होना है, इंट्रैक्शन दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए ना, तब जाके जल्दी आसपास में आ सकते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं ना, जब बीच में अगर कोई नहीं है। बट आप अगर ये ग्लूकोज वगैरह डाल देंगे तो क्या होगा, बीच में आ जाएंगे वो लोग, है ना, बीच में जब वो लोग आ जाएंगे तो उन लोग को मिलने नहीं देंगे, किसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मिलने नहीं देंगे। जितना आसान से खाली पानी में मिलता था, अभी ग्लूकोज की वजह से उतना आसान से वो लोग नहीं मिल पाएंगे खाली पानी। तो उस मोमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, और भी टेम्परेचर कमाना पड़ेगा। टेम्परेचर और कमाओगे, टेम्परेचर और कमाओगे तो क्या होगा, वो लोग सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैसे भी क्या करेंगे, है ना, टेम्परेचर कमा रहे मीन्स व्हाट, उनका पूरा जीरो कर दे रहे हो, उनका जो मतलब एनर्जी है, एंट्रोपी है, पूरा आप खींच दे रहे हो। थर्मोडायनेमिकल अगर देखा जाए, उसका सारे के सारे एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को कमा दे रहे हो। जब कमा दे रहे हो तो क्या होगा, एनर्जी जब खींचा जाएगा तो उसके पास थर्मल एनर्जी वो डाउन हो जाएगा, जिसके वजह से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डोमिनेट ओवर द एनर्जी, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आस पास में आके लगेंगे, है ना, तब जाके आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा वो, आपका वो बनेगा सॉलिड फेज में, है ना। तो यहाँ पे आप जब ग्लूकोज को डाल दिए पानी में, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था वो अभी नहीं होगा, बल्कि -2, -3, -4 पे होगा। क्यों होगा भाई, अभी बताया ना रीजन, क्योंकि आपने बीच में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डाल दिया। समझ गए। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस से -2, -3, -4 ऐसे तक चले जाएगा। तो अभी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, पहले जितना था उससे कम हो गया ना गाइस, 0 से नीचे चला गया मतलब कम हो गया ना। सो देयरफॉर दिस इज मेंशन्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया गाइस, कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला देखते हैं, TF0, TF0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट